like preparing my dinner, and then preparing for next morning, next day. So those are the things ब्रेकफास्ट में I'm क्या खाना है, लंच में क्या लेके जाना है, exactly, और फिर exactly. जब And ब्रेकफास्ट बन जाता है, ऑफिस जाते हैं, डिनर में क्या खाना है? right, right. Now, actually, you can understand. Totally, you can understand those things. Yes. And second thing, yeah, actually, I do. After the dinner, I have like 1 hour, 1.5 an hour. I have so like free time for myself. So, I usually read books. So Okay, novels that's I nice. read. Usually I read novels. Weekend I watch movies. Those are the things which I'm managing. And on Sunday, I have to purchase all the vegetables and I have to prepare for Monday then once again. Yeah, I know that. So, So this is कभी the ऐसे like दिक्कत आई है overall कि कैसे idea. टाइम मैनेज होगा करके? Sorry? कभी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है कि कैसे मैं टाइम को मैनेज करूँ? आई हैव शॉर्ट ऑफ टाइम एंड काम बहुत ज़्यादा है। Yeah, initially when I shifted in Vizag, so because when I was in Delhi, so I was not staying alone. I was with my roommates. So ओके। this is the first time actually properly like staying alone. So हाँ, हाँ, हाँ। I shifted here. No one came actually, so I like managed everything with myself. Anyhow, my cousin and my mossy was there, so but still I have to manage everything. So that during that time, I've suffered a lot about the time management, how I can just balance my work and personal life. During that time, but slowly I actually learned those things. So right now I'm managing, but sometimes if I'm doing work in weekend also, then it is very difficult to manage sometimes. Yeah, I can understand. So basically, आज का like I take classes for vocational guidance and public speaking. So in Okay. vocational guidance, what all things are important to get success in life, we cover all those topics. Hmm. Apart from them, there are those topics. We also cover those topics जो हमारे like the ladies uh, which are joining the group. Okay, like Mawa ji, there's Ravinder ji, she's a psychologist. Mawa ji, she's a principal and she has got the Guinness Book of World Record wala. Her school got that award recently. And जो भी ये लोग topics कहते हैं, then we discuss all those topics and we make them feel comfortable in the group so that whatever problems they are facing, they can share with us. And my words, they actually share what they are going through. They have never thought कि मतलब और लोग आ रहे हैं कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा. They have shared everything with us, right? So maybe it might be a date glitch कि they have not joined or there might be some issue with these persons, but Hmm. they always join the group. It's okay. Let's start with the how to manage time, and it's really difficult to manage time. Like when I started with my things, बच्चे हो गए, फैमिली है, ये है, वो है, तो it was so hodgepodge in the beginning ना, कैसे Hmm. होगा, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. So I I remember कि मैं भूल जाती थी. आई यूज्ड टू लाइक Hmm. फॉरगेट एवरीथिंग क्योंकि हम लोग क्या करते हैं क्योंकि हम पहले क्या होता था कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं और उसमें हमने अपना काम भी जोड़ लिया। Hmm. तो सब क्या होगा हौच-पौच हो जाएगा। हम सोचते हैं एकदम से कि एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड बट ऑब्वियसली हाउ दे आर नॉट गॉड ना। Right. How Right. will they understand? We have to make them understand. So धीरे-धीरे when I have make them understand कि okay this work is done in this time period, this work is done in this time period, and I have to do my work in this time period. So I'm not available for this time period to this time period. Hmm. Right? So they have understood that part कि यश इसने हमारा ये काम इसने कर दिया है. Now we are satisfied. ठीक है, Hmm. जो उनके काम है वो कर दिया. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी अ मल्टीटास्कर ऑलवेज. आप भी Right. एक Agreed. इंसान हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते. तो आई हैव स्टार्टेड डेलीगेटिंग द वर्क. डेलीगेटिंग इन द सेंस कि बच्चों को थोड़ा उनका अपना अपना काम सिखाया. ठीक है, कुछ काम है जो मैंने छोड़ दिया एंड आई सेड कि ओके मनीष ये तो आप अपने आप कर सकते हो, या जो काम लोग अपने आप कर सकते तो उनके ऊपर छोड़ दिया, तो थोड़ा धीरे 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 वो करना स्टार्ट किया.
तो दिस इज हाउ वी मैनेज आवर टाइम. तो लेट्स स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जिससे आप टाइम मैनेज कर सकते हो. ठीक है. I have shared the screen. I hope you can see my screen, the Yes. shared screen. Yeah, great. So, first thing, first step, what you have to do, I'm so sorry, just a second. Yeah, you have to do a time audit, राइट. जैसे हम लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क आता है ना, हम लोग पैनिक कर जाते हैं, क्रिप कर जाते हैं, एंड वी थिंक कि यार अब कैसे होगा, मुझे को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. तो जो काम दैट वी फील वी कैन डू टुमारो, कि अच्छा ठीक है, ये इतना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है आज के वक्त के लिए, आज मेरे लिए ये एक न्यू काम आया है, मुझे यही काम आज के वक्त में करना ही है. ठीक है. द वर्क, और अगर मेरे पास इस काम को करने के बाद थोड़ा और टाइम बचता है तो मैं वो दूसरा जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है वो कर सकती हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैनेज करूंगी. ठीक है. बट जो आज का काम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, वो मुझे ऑडिट करना है. तो सबसे पहले सुबह उठते ही वी हैव अ प्लानर ऑफ द डे, कि ये मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है आज के दिन के, और मुझे उनके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना है. राइट. सो यू हैव टू डू अ टाइम ऑडिट. नाउ हाउ यू कैन डू द टाइम ऑडिट, वो मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले उठो और जितने भी आपके टास्क हैं उनको एक लिस्ट बनाओ. ठीक है. और उनके उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना है कि इस टास्क में कितना टाइम लगने वाला है, इस टाइम में कितना टाइम लगने वाला है. तो आपका जो आइडियल टाइम है और जो एक्चुअल टाइम आपने हर टास्क के लिए अलॉट किया है, आपको अपना स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए. यू गॉट इट ना. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू वेल वी गेट अप इन द मॉर्निंग. और जब हम अपना डे प्लान करते हैं, सेम इससे क्या होगा ना, कि जो वर्क हम भूल जाते हैं, हम वो वर्क भूलना बंद कर देंगे, बिकॉज इट इज रिटन समवेयर कि मेरे को ये काम आज की डेट में करना है. तो हम जो हमारे दिमाग से चीजें निकल जाती है, देन वी रियलाइज कि यार ये भी तो इंपॉर्टेंट थी, ये तो मैंने किया ही नहीं, ओ माई गॉड, अब क्या होगा. वो वाली चीज हमारी उससे निकल जाएगी, बिकॉज वी हैव रिटन इट समवेयर, एंड लाइक हम लोग ऐसे टिक मार्क करते चले गए. अच्छा, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन. अच्छा, मेरे पास अब इतना टाइम पीरियड बच गया है, सो जो नॉन इम्पॉर्टेंट वाला है, जो मैंने कल के लिए छोड़ा है, क्यों ना आज ही उसका थोड़ा सा काम कर लेती हूँ. ओके. नाउ टिप 2 इज you should create a to-do list. You should create a to-do list. Now, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू डिसाइड इट वाइजली कि इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं. समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज और फिर हमें रियलाइज होता है यार जो हमने सेकेंड वर्क छोड़ा था ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था. तो यू हैव टू मेक द डिसीजन वाइजली कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और उस टास्क को टैकल कैसे करना है वो हमको मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेना है. अपनी जो भी चीज़ है हमें मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेना है. बट यू नो, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इट इज सेड दैट कि रात को व्हेन यू आर इन अल्फा स्टेट, उसी टाइम में आपको अपनी लिस्ट बना के रख देनी चाहिए कि कल आपके पास क्या क्या काम है. ओके. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपको पहली रात को व्हेन यू आर इन द अल्फा स्टेट, अल्फा स्टेट में कब होते हैं हम लोग, जब हम सोने जा रहे होते हैं, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, उसी वक्त हमें अपनी लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कल हमारे पास ये काम है, और उसी टाइम पे हमें उनके टाइम पीरियड्स चेक कर लेने चाहिए. दिस इज द स्केड्यूल. सो एंड थर्ड टिप इज वी शुड नॉट डू मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्क करने से क्या होता है कि अभी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, हम सोच लेंगे अच्छा पहले थोड़ा सा ना ये वाला कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ये वाला कर लेते हैं. इससे क्या हो रहा है कि सारा ना मर्ज अप हो रहा है और हम कोई भी टास्क ठीक से कर ही नहीं पा रहे हैं. सो मल्टीटास्किंग में नहीं फंसना है, और जो इंपॉर्टेंट काम होगा ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा वो भी हमारा रह जाएगा मल्टीटास्किंग की वजह से. तो वी शुड नॉट मल्टीटास्किंग. लेकिन देयर आर मिथ्स अबाउट मल्टीटास्किंग दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट करता है. हमारा जो मल्टीटास्किंग होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट करता है.
And according to me, this is not a myth and it happens actually. With age, अगर हम ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने लगते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट करने लगता है। और अभी मैंने आपको बताया, स्विचिंग बिटवीन चैलेंजिंग टास्क लिटरली ड्रेन्स योर ब्रेन. It also makes you more likely to commit mistakes. This is not right when सपोज हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, आप किचन में जब काम कर रहे हो, तो जब आपने दाल चढ़ाई तो क्या आप दाल को ही देखते रहोगे? आप साथ में चावल भी चढ़ा दोगे, आप साथ में आटा भी मल दोगे, अपने लिए चाय भी बना लोगे, राइट? तो दिस इज जस्ट अ मिथ कि ऐसा करने से हमारे साथ गलतियां ज्यादा होती हैं। इट्स जस्ट कि वी आर मैनेजिंग टाइम, हम खड़े होकर दाल को ही नहीं देख सकते, हमें और बाकी चीजें भी, और बाकी टास्क भी हम साथ में कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, राइट? तो इतने मोमेंट में हमारी दाल पक रही है, इतने में हमारे चावल भी रखे गए हैं, वो भी थोड़े-थोड़े हो गए हैं, साथ में हम लोग आटा भी मल रहे हैं, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उस मल्टीटास्किंग में भी हमने साइन टाइम स्लॉट्स करके रखे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक इधर कुकर रखा है, एक हाथ से कुकर रखा है, एक हाथ से हमने चावल का पतीला रखा है, ऐसे नहीं होता है ना। तो फर्स्ट वी हैव पुट दाल, देन चावल एंड देन वी आर गूंदिंग आटा। सो दिस इज जस्ट अ myth. And let's move on to the next one. Monotasking allows you to focus your time energy to the task at hand. पर अगर हम मोनोटास्किंग ही करते रहेंगे तो एक ही चीज पे अटके रहेंगे. It will take lot of time to be done, right? Now set aside a block of time to do a certain task. Turn off notification and listen to relaxing music. Sometimes हम इतने ज़्यादा टास्क में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि लाइक वायर है ऐसे करके उलझ गई है, राइट? तो जब ऐसे होता है ना, तो व्हाट शुड वी डू? लीव एवरीथिंग, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड देन रिलैक्स, लिसन टू म्यूजिक फॉर सम टाइम, देन स्टार्ट योर वर्क, बिकॉज ब्रेक इज रियली इंपॉर्टेंट. तो अपने टास्क के बीच में ना ब्रेक लेते रहने चाहिए. इट्स नॉट कि हम अकेले हैं तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं. वी नीड ब्रेक बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. एंड एक ब्रेक ना, 1 घंटे का ब्रेक भी हमें इतना चार्ज अप कर देता है कि जब हम दोबारा उस काम को करने बैठते हैं तो वी डू इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. जस्ट अ सेक. हियर, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन टाइम. दिस इज वन ऑफ द टिप. अपने टाइम का कंट्रोल आपके हाथ में, खुद के हाथ में होता है. कोई आपको आके नहीं बताएगा, ऐसे कर लेना, इस टाइम पे ये काम कर लेना, उस टाइम पे वो काम कर लेना, और फिर आप सोचे इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैं तो, मेरा टाइम तो डिफरेंट है, मैं क्यों इसकी बात मानूं? टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन टाइम, राइट? अपनी चीजें अपने हाथ में लेना सीखो एंड अपने तरीके से करना सीखो. दिस इज हाउ यू मैनेज योर टाइम. There are certain other factors as well, like हमने स्केड्यूल्स के बारे में, प्रायोरिटाइजिंग टास्क के बारे में बात किया है. एक क्लियर गोल हमें सेट करके चलना चाहिए. जो भी लाइक एक, आज हमें ये, सपोज हमारे पास 4 काम है, आपने 4 काम की लिस्ट बना ली है, आज हमें ये 4 काम करने ही करने हैं, लेकिन उनके ना एकदम रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए कि आज की डेट में वो डेफिनेटली हो ही जाएंगे. ठीक है? इस तरह से उसको प्लान करो कि वो आज की डेट में हो ही जाएँगे. यू कैन ऑल्सो डेलीगेट योर टास्क्स. जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैड स्टार्टेड डेलीगेटिंग द टास्क टू, लाइक आयन है, माय सन, तो उसको मैं कहूँगी बेटा ईट योरसेल्फ नाउ. यू आर अ बिग बॉय, ईट योरसेल्फ. ओके? और नहीं तो मुझे खाना खिलाने में 1 आवर लगता था. एक आवर उसको लग रहा है, एक हैंड से उसको खिला रही हूँ, एक हैंड से उसको खिला रही हूँ, और फिर मैं अपना भी खा रही हूँ. तो मैंने वो डेलीगेट करना स्टार्ट किया, जो काम वो लोग खुद कर सकते हैं. अपने कपड़े खुद निकाल सकते हैं अलमीरा से. आई डोंट हैव टू मूव एवरी टाइम, राइट? एंड तीसरी चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? जब हम आज का काम कल के ऊपर टाल देते हैं, अरे यार कल कर लेंगे, अच्छा ठीक है आज ना थोड़ा सा मूड नहीं कर रहा, चल परसों कर लेंगे, कल तो मुझे ये भी काम है, मुझे मूवी देखने जाना, ऐसे करते परसों कर देंगे.
तो व्हेन यू डू लाइक दिस ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आपका टाइम कभी मैनेज होगा ही नहीं, क्योंकि परसों हो सकता है आपके पास और कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए और वो काम रखा रह जाएगा, राइट? मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो व्हेन डिस्ट्रैक्शंस लाइक, यार कल तो मूवी देखने जाना है ना, ऐसा करती हूँ ये वाला काम ना परसों ही कर लेती हूँ, दीज ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस। छोटी छोटी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप मेडिटेशन करने बैठे, ओके, ऊपर से ना एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, डिस्ट्रैक्ट हो गए यार, अब तो हम कर ही नहीं रहे। तो इट्स ओके यार, आवाज़ तो आएगी ही। कब तक चीज़ें ऐसे चुपचाप होती रहेंगी, राइट? तो डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे, उनको लेकिन अपनी चीज़ों पे फोकस करना हमें सीखना है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज, वी शुड चेंजेस के लिए हमें अडेप्टेबल बनना है। हमें एवरी टाइम फ्लेक्सिबल रहना है। ज़रूरी नहीं है हर दिन एक जैसा होगा। आज अच्छा है, कल हो सकता है खराब भी हो। तो वी शुड नॉट क्रिप, वी शुड नॉट पैनिक। हमें चेंजेस को अडेप्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ डे, ऐसा होता है। आज खराब है, कल ठीक हो जाएगा, राइट? द मोमेंट यू हैव थिंक लाइक दैट, यू हैव थॉट लाइक दैट, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हमने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऊपर वाले ने ऐसे करके भेजा, लेट इट बी, कल सब ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअल में वो अभी से वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव गिवन दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द यूनिवर्स कि इट्स ओके, राइट? आई नीड फीडबैक, yes or no? Yes, actually. Yeah, you're right. Totally right. Ravinder ji is joining us. Good morning, Ravinder ji. I think still connecting to audio. Connecting to audio, yeah. उनके नेटवर्क में थोड़ा इशू रहता है हमेशा। मैं ऑडियो नहीं ऑन रख पा रहा हूँ बिकॉज पीछे बच्चों ने बहुत शोर मचा रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मुझे सब रिपीट करना होगा। शी इज कनेक्टिंग। लेट्स वेट फॉर हर। सो बेसिकली आज रविंदर जी को हमें पीएमआर करानी थी, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन से के अकॉर्डिंग बनाया था, एंड उनको पीएमआर करानी थी, प्लस एक एक्टिविटी होनी थी। व्हाट इज पीएमआर? वही प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन ना। ओके ओके ओके। तो चेतना These, हम लोग this is मतलब according to your time, मतलब सेशन में ही कर कैसे रहता है? क्या, आप पीएमआर के बारे में बता रहे थे तो। PMR इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, राइट? तो जब हम लोग हिप्नोथेरेपी करते हैं, उससे पहले हमें जितनी भी हमारी बॉडी मसल्स है ना, फ्रॉम टो टू हेड, नॉट फ्रॉम हेड टू टू हेड, हमें वो सारा रिलैक्स कराना होता है। ओके। तो हिप्नोथेरेपी क्यों की जाती है? हिप्नोथेरेपी की जाती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा, सपोज हमें कोई चीज़ चाहिए, हमारी विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए, हमें इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए। सो वी बिलीव, साइकोलॉजी में वी बिलीव कि व्हेन वी विजुअलाइज, व्हेन वी इमेजिन, तो वही होता है जो हमने इमेजिन किया है, बिकॉज वी आर पासिंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूनिवर्स। हम जो सोच रहे हैं ना सबकॉन्शियसली, वो यूनिवर्स तक जा रहे हैं। तो थ्रू हिप्नोथेरेपी हम कॉन्शियस माइंड को डीएक्टिवेट करके, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पहुंचा रहे हैं। ओके। Okay, so she, like, I am a hypnotherapist. Manish is a hypnotherapist, and yeah, and this Ravinder ji has done या level लर्नड one. लर्नड इट अ लिटिल बिट काइंड ऑफ। ये तो काफी प्रैक्टिस कर लेती है। आई आई हैव जस्ट लर्नड अ बिट। So Ravinder ji is a level one hypnotherapist. So we had decided कि वो PMR हमने हमें कराएंगी, बट वो ओके। अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। So वर्चुअली मतलब जस्ट क्यूरियस, वर्चुअली रहता है या फिर जस्ट मतलब कैसे मतलब। सी वर्चुअली भी रहता है, ऑफलाइन वन भी थिंग इज रहता है। वेरी वन थिंग इज वेरी दिस थिंग कि
अगर आपने कभी नोटिस किया है कि किसी दिन काम जो होते हैं बहुत इजीली हो जाते हैं और किसी दिन सेम काम को करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. Hmm. So being in a zone is very important. So during when we were student also, that time also, it's a very this example we have felt, every one of us have felt कि जब जोन में होते हैं तो स्टडीज कितने अच्छे से होती है, चीजें अपने आप माइंड में जानी शुरू हो जाती हैं. और जब हम जोन में नहीं होते हैं, कोई पर्टिकुलर थॉट परेशान कर रहा होता है या कहीं पे कोई पेन हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, तो वो जोन बन नहीं पाता है. So what PMR does is that it relaxes your body, it relaxes your mind, and when you are in that state, whatever you want to do, you quickly get into the zone and start working on that particular aspect. Even for the sports person, and even if you're sitting on a desk and trying to do an office job, PMR, it takes about 5 to 10 minutes, and it is excellent exercise which you can do yourself also. एक जस्ट Okay. अपनी, हाँ, खुद भी कर सकते हैं. 2-3 बार अगर कर लिया, उसके बाद खुद से भी यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, जस्ट रिलैक्सिंग योर मसल. एंड द पावर ऑफ माइंड, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ माइंड की जस्ट सोचने भर से हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ. Good morning, Ravinder ji. Sorry, तो Manish. ये, हाँ, ये I think करवाएगी she's तो विल डू out. दैट. I'm just someone is there at my door. हाँ, please, please. Good morning, Ravinder ji. मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग. How are you? You are late today. यस, ये यस, लेट हो गया. मैंने कहा करना जरूर है. कुछ काम था घर पे तो मैं थोड़ा लेट हो गई. कोई बात नहीं. वी वर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट और हमने ना एक्चुअली एक न्यू हमारे साथ जुड़ी है चेतना. ओके. यस. तो ना. मैंने उनको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में. तो आप प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. चेतना इज जस्ट कमिंग एंड शी विल स्विच ऑन हर वीडियो. ओके. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. होगी मैम ऑन. हाँ जी, हाँ जी, मुझे आप दिखाई दे रहे हो एंड आपकी टी-शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है. आज महुआ जी को पता नहीं क्या हुआ है, शी इज़ नॉट हियर. मैं वो याद कर रही थी कि वो एवरी टाइम ना वो 10 मिनट्स बिफोर ही जॉइन कर लेती हैं. ओके. अच्छा, आज या, लेट हो गई. ओके. यस. सो रविंदर जी, शी इज़ चेतना. Hi. हाय मैम. हेलो. Ravinder ji is a psychologist, Okay. okay, and she has done level 1 hypnotherapy recently. Uh, चेतना अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज रविंदर जी को. Okay, so शॉर्ट. okay, yeah, I'm Chetna and I'm from UP and I do work in Vizag in pharmaceutical company Pfizer and I'm a project manager. So I have like 10 years of experience in my family. We have like 4 members, my father, mother, and the elder brother. Yeah, he's also married. So he's married. So and has a beautiful girl. So that's about Chris Fender's little bit He's a about. project manager in Pfizer. ओह, वेरी And नाइस मैम. गुड. yeah, from 2021, she is in Vishakhapatnam. So I've just come to know that she is in Vishakhapatnam. She is from my mother's place. ओह ओह, Yes, विशाखापट्टनम. Meerut. Meerut. Meerut is my mother's place. Yes, she's working in Vishakhapatnam. Like we are posting in Vishakhapatnam. I've told you earlier also, right? ओह, नाइस, वेरी नाइस. तो रविंदर जी, नाउ एक सेकंड ये देख लेती हूँ. रविंदर जी, आज आपका पीएमआर था, आपको याद है? यस, आप याद है. से मैंने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया बट मैं करवा दूंगी. इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. ओके. तो चेतना को आज आप पीएमआर कराएंगी. इनफैक्ट आई विल बी देयर. सो ओके. बिफोर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, राइट? हाउ टू मैनेज टाइम. सो रविंदर जी, आप बताइए कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो? Like you have mother-in-law also, you're a psychologist also, you're doing some courses as well. यस घर यस. को सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी. बट हाँ, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरी करके फिर मैं 1-2 दिन का टाइम निकालती हूँ जो मुझे अपने कोर्सेज के लिए जाना होता है. ऐसे करके बाकी घर में रह के भी मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ टाइम मैनेजमेंट में, ये मैं पहले ही बता दूं. बट और इनफैक्ट मुझे भी इसके लिए बहुत कुछ सीखना है. प्रैक्टिस इसके ऊपर काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है.
जितना हो यस। सकता है कोई कर लेते हैं जैसे भी। रविंद्र जी, हमने स्टार्टिंग में ना सबको प्लानर्स दिए थे, वीकली प्लानर दिया था, आपको मिला था वीकली प्लानर? नहीं। नहीं मिला था। ठीक है, मैं आपको भी ना उसका लिंक भेज दूंगी वीकली प्लानर का। ओके। ठीक है ना, जिन लोगों ने हमारा मास्टर क्लास किया था वोकेशनल गाइडेंस का, उन सबको हम लोगों ने, जिन्होंने एंड तक देखा था, उन सबको हम लोगों ने वीकली प्लानर दिया था, तो आई सेंड इट टू यू। ठीक है, या फिर आप मैम से भी ले सकते हो, कोमल मैम से। अभी तो शी इज ऑन लीव, आई थिंक शी विल कम टुडे और टुमारो। ओके। ओके, तो आप उनसे भी वीकली प्लानर ले सकते हो। मैं मैम एंड हाँ, अच्छा, हमारी ना ऑलमोस्ट काफी स्लाइड्स हो चुकी थी, बट आई रिपीट इट फॉर यू। ठीक है, तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना वोकेशनल गाइडेंस, तो मैंने सबसे पहले ही बोला था कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सेटिंग गोल सेटिंग वाला जो हमने किया था, राइट, जिसमें हमने यस स्वॉट एनालिसिस कराया था। जी। या तो उसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको टिप दिया था कि आपको डे के पहले ही, डे की स्टार्टिंग में ही आपको आज के टास्क की जो भी लिस्ट है वो आपको बनानी है। ठीक है। ठीक है, और जब वो टास्क की लिस्ट बन जाएगी, उस उन टास्क का आपको टाइम पीरियड लिखना है। ये फर्स्ट टास्क है, इस टास्क में मुझे इतना टाइम लगने वाला है, और ठीक मुझे है। ये इतने बजे से इतने बजे के बीच में खत्म कर देना है। ओके। ठीक है, उन सपोज आपने 5 चीज़ों की लिस्ट बनाई है, वैसे हमारे पास दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमने उनको लिस्ट डाउन कर लिया, उनका टाइम पीरियड लिख दिया, इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे ये काम करना है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आज की डेट के लिए। ठीक है, वो उस वक्त में करेंगे जब मेरे पास टाइम बच जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, उस तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। तो फर्स्ट टिप इज यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट। ओके, टाइम ऑडिट करना है आपको। इसमें क्या करोगे आप कि आपको ये देखना है कि जो भी आपने लिस्ट बनाई है, वो हर टास्क में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके। आपकी, और फिर आपको कंपेयर करना है कि आइडल टाइम इतना है और एक्चुअल टाइम जो मेरा टास्क का अलॉटमेंट है वो इतना है, तो मुझे एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, और मैं अब इसको कैसे उसको स्केड्यूल कर सकती हूँ अपने डे को। राइट। राइट, so you have to create a to-do list. Now here आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है ना, उनको सबसे पहले रखना है। ओके। जैसे आपको ना मैम ने बताया होगा कि अल्फा स्टेट में ही हमें अपने टास्क को रखना चाहिए। नो मैम, अभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरा अभी काम नहीं हुआ है। अभी काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है, मैम यही बताती हैं कि जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, अल्फा स्टेट कब होता है हमारा, जब हमें नींद आ रही होती है, जब हम सोने जा रहे हैं, वी आर ऑन आवर बेड, राइट, हम बस सोने जा रहे हैं, और उससे पहले हमें ना एफर्मेशंस करनी है, अपना कल का काम का लिस्ट बनाना है, और हमें कुछ रीड करके सोना है। क्योंकि अल्फा स्टेट में हमारा जो माइंड होता है वो बहुत यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है और एक्टिव होता है। जब हम सोने लगे वो जब हम अल्फा स्टेट। सोने जा रहे होते हैं, यस, ओके। रात को, तो हमारा माइंड ना अल्फा स्टेट में होता है, हमें हल्की नींद आ रही है, हमें हल्की नींद नहीं भी आ रही है। ठीक है, ओके। उस वक्त में ग्रैटिट्यूड लिखना है, थैंक यू गॉड, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आगे भी मेरे साथ ऐसे ही अच्छा होता रहे, थैंक यू सो मच। ये प्रैक्टिस मैंने अपने दोनों बच्चों को कराई है when they are in alpha state. Secondly, affirmations. Suppose I'm happy and positive person. Yeah, I am happy and confident, uh, and I deserve success in whatever I do. या कोई भी affirmation जो आप अपने साथ चाहते हो. Suppose आप चाहते हो कि आप एक महीने में 10 लाख रुपए कमाओ, या एक दिन में 10 लाख रुपए कमाओ, तो आपको वो बहुत ही स्पेसिफिकली बताना है, टिल डेट लिखकर। ठीक है, कि आई वॉन्ट टू अर्न, या आई एम अर्निंग, यस, हमारा प्रोसेस चल रहा है, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज एवरी मंथ।
ओके, तो बी स्पेसिफिक, और जितना भी ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो उतना स्पेसिफिक। आई वॉन्ट किया कार, तो किया, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ बिग कार, ये कुछ नहीं। आई वॉन्ट किया कार ऑफ रेड कलर और वाइट कलर, राइट। तो इस तरीके से आपको एफर्मेशंस लिखनी होती है, राइट चेतना? राइट। ठीक है। सो अल्फा स्टेट में हमारा ग्रैटिट्यूड हो गया, एफर्मेशंस हो गए, हमारी टू डू लिस्ट, कल हमें क्या क्या काम करना है, राइट। हम टू डू लिस्ट बनानी है, कल हमारा ये काम है, और मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के उन काम के आपको क्या क्या टाइम स्लॉट है वो आपको करनी है, ठीक है। राइट। And और क्या करना है, हमें कुछ रीड करके सोना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी अच्छा रीड करके सोना है, अच्छा, ठीक है। हम अल्फा स्टेट में हैं, वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स नाउ, तो हमें कुछ अच्छा सोच के अच्छा करके ही सोना है, अच्छा पढ़ के सोना है। इफ यू वांट लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ, तो हमें मनी के बारे में अच्छा पढ़ के सोना है, कुछ उसके टिप्स के बारे में जानो, कुछ अच्छा जानो उसके बारे में। अगर आपको बायोग्राफीज में इंटरेस्ट है तो किसी की अच्छी बायोग्राफीज पढ़ो, कोई अच्छे इंसान की बायोग्राफी पढ़ो जिसमें कुछ मोटिवेशनल हो, सो दैट नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठोगे ना तो आपके माइंड में थॉट आएगा कि ओके उन्होंने बुक में ये कहा था तो आई हैव टू थिंक दैट वे, राइट। राइट। या फिर उठते ही सबसे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ याद भी नहीं रहता, एटलीस्ट थैंक यू गॉड तो कर सकते हैं, कुछ मत बिल्कुल। कहो, थैंक यू गॉड, दिस विल चेंज योर लाइफ, your whole day, this will change your life from today यस। onwards, right रविंदर जी, राइट चेतना? ये वर्क करता है, ये बिल्कुल वर्क करता है। ये वर्क करता है। करता है एक्चुअली। ये, हाँ, ये रूटीन है मेरा ये। मैं करती हूँ कि रात को सोने से पहले बुक पढ़ती हूँ और मॉर्निंग उठते पहले एक प्रेयर करती हूँ, तो ये वर्क करता है, थोड़ी पॉजिटिविटी बॉडी में और सोल में ऐसे रहता है पूरा दिन। ये, राइट राइट राइट, करेक्ट। तो हमें ये सब करके सोना और उठना, ऐसे ही उठना चाहिए, अपने दिन को ऐसे ही बनाना चाहिए। देन we were talking about multitasking, don't multitask, let's see about the myths of multitasking। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो इट सेज दैट वो नेगेटिवली हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट करता है। तो रविंदर जी आपको लगता है ऐसा होता है? करता है मैम, मैं भूल जाती हूँ कुछ कुछ चीजों को ना, कई बारी। इसीलिए तो हमें टू डू लिस्ट करनी है, ओके, इसीलिए हमें टू डू लिस्ट करनी है। सी, अभी क्या है, मैं चेतना को भी वो एग्जाम्पल बताई थी और मैं आपको भी यही एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप खाना बनाने किचन में गए हो, ठीक है, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी क्योंकि उसमें लिखा है मल्टीटास्किंग मत करो कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है, हम भूल जाते हैं। तो आप क्या करोगे, दाल चढ़ाई, या दाल को देखते रहोगे और साथ दूसरी साथ वो के नहीं, साथ साथ दूसरा आटा भी गूंद लोगे, जितनी देर में दाल बन रही है उसका तड़का भी बना लोगे, यस। राइट। चावल हाँ। भी रख दोगे, आटा भी गूंद लिया, सब्जी भी बना ली, करोगे ना। बट उसमें भी आपने क्या किया, उसमें भी आपने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया, हाँ। राइट। आपने पहले दाल चढ़ाई, फिर हम्म। आपने चावल चढ़ाए, फिर हम्म। आपने सब्जी छौंकी, फिर हम्म। आपने जो टाइम बचा है अब आपने उसमें आटा गूंदा, हाँ। उसमें भी आपने अब टाइम को मैनेज कर लिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि इधर दाल चढ़ाई इधर चावल चढ़ाए, दो हाथ हैं, दोनों का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट कुछ लोग करते हैं, कई बार जल्दी होती है तो करना भी पड़ता है। तो वी हैव टू मैनेज आवर टाइम, क्योंकि वो वाला जल्दबाजी जो होता है ना उसमें एक्चुअल में फिर गड़बड़ होता है सारा काम, गड़बड़ होता है, हमेशा होता है। डेफिनेटली मिस्टेक्स होंगी और काम ना कम होने की जगह बिगड़ जाएगा और काम बढ़ जाएगा, हाँ बिल्कुल। नहीं, वो राइट। डिवाइड करना पड़ता है, वही ठीक रहता है। करेक्ट करेक्ट, तो इसमें भी हमने मल्टीटास्किंग में क्या किया, टाइम को मैनेज किया है। नाउ स्विचिंग बिटवीन चैलेंजिंग टास्क लिटरली ड्रेन्स योर ब्रेन, इट ऑल्सो मेक्स यू मोर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स, जैसे आप अभी बता रहे थे रविंदा जी, राइट। यस। हाँ, लेकिन अब इसमें हम और भी क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो करते हैं ना कि अच्छा थोड़ा सा काम अभी कर लिया, ये वाला काम थोड़ा सा कर लेती हूँ, थोड़ा तो हो ही गया कम से कम, ये वाला थोड़ा सा कर लेती हूँ, चलो ये भी थोड़ा सा कम से कम हो गया। अब इसमें क्या हो गया, दोनों काम अधूरे ही रह गए,
ऐसे होता है, यस। ऐसे ही होता है ना. So we have to complete one task ओके। first and then the other one. अब थोड़ा इधर करोगे ना, आप कच्ची दाल तो नहीं खा सकते ना, कच्चे चावल तो नहीं खा सकते ना. यस। जल्दी के चक्कर में कि चलो ऐसा करते हैं, अच्छा एक से दाल बंद कर दो, अच्छा ये भी हो गया, चल दाल बंद, चावल बंद कर दो. कच्चा कच्चा तो नहीं खा सकते, पकाना तो पूरा पड़ेगा. यस। हाँ, तो तभी हमें खाने में मजा आएगा. तो आपको दाल भी पूरी पकानी है, चावल भी पूरा पकाना है अब, लेकिन उसमें आपने टाइम को मैनेज कर लिया. नाउ आपके पास 4 बर्नर वाला है, चारों गैस पे आपने खाना रख दिया, आपका चारों खाना एक साथ बन रहा है. नाउ यू आर सेविंग टाइम. यस। आपके पास टाइम बच ठीक है। गया. ठीक है ना, और भी मतलब चीजें करने के लिए. आई होप यू गॉट इट व्हाट मैं कहना चाह रही हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. ये, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल. कि आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हमें काम भी करना है, मल्टीटास्किंग भी करनी है, और उसमें भी टाइम को डिवाइड करके कि एक चीज को करेक्ट. अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, फिर दूसरी चीज को किया, साथ साथ दोनों का ध्यान रखा। यस. राइट। ऐसे ही है यस. ना? मेनली यस. प्रायोरिटाइजिंग द वर्क एंड मैनेजिंग द वर्क. अगर हमारे पास 10 टास्क हैं तो उसमें पहले प्रायोरिटाइज करना है कि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो इसको खत्म यस. करना है. उसके बाद यस. हम दूसरे वाले को मैनेज कर सकते हैं. एंड उसमें हम मल्टीटास्किंग का दो ऐसे काम है, छोटे छोटे काम है, तो उनको हम साथ में पैरेलली कर सकते हैं, तो उनको हम कर लेंगे, उसको हम मैनेज कर लेंगे. यस. तो इससे क्या किया आपने, अपना टाइम सेव भी किया है, आपने मल्टीटास्किंग किया है. हम्म। दो यू आर इन्वॉल्व इन सो मेनी वर्क एक टाइम पर, लेकिन आपने बाद में टाइम भी सेव कर लिया ना. हम्म। अगर आप सोचो, आप खड़े होके सिर्फ दाल देख रहे हो, अच्छा अब दाल बनेगी, फिर आप चावल चढ़ाओगे, तो आधा घंटा दाल में लगे, आधा घंटा चावल में लगे, आधा घंटा सब्जी में लगे, आपके तो 3 घंटे गए. बिल्कुल। राइट. राइट. तो उधर आपने क्या किया, आपने सब कुछ धीरे धीरे वन बाय वन आपने सब कुछ चढ़ा दिया, और आपका खाना आपका आधा घंटे में सारा ही बन गया. यू हैव सेव 2.5 hours. राइट. यस यस। बिल्कुल उस ठीक है। 2.5 hours में क्या कर सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो, आप कोई और जो नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क है आप वो कर सकते हो, एंड देन यू कैन रेस्ट, बिकॉज रेस्ट तो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए. राइट. बिल्कुल। राइट. तो रेस्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और रविंदर जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप अपना म्यूजिक सुनना स्टार्ट करोगे. अच्छा, मैं तो भूल गई थी मैम, सॉरी। हाँ, टाइम मैनेज नहीं किया ना आपने, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट में ये सिखाया था. ठीक है। म्यूजिक मेरे को हाँ पसंद है, और मैं सुनती हूँ, मेरे पास कारवा रखा है पास में। हाँ, आपकी टेबल पे कारवा रखा हुआ था ना उस टाइम पर. यस यस, ये देखिए, हाँ. ये रखो। मेरे पास ही म्यूजिक है। सुनना, म्यूजिक सुनना स्टार्ट कीजिए. ठीक है ना. बिल्कुल बिल्कुल। ओके। रिलैक्सेशन म्यूजिक, या जो भी म्यूजिक, पुराने गाने जो आपको पसंद हैं. और हाँ, बहुत ज्यादा ना रोने वोने वाले गाने मत सुनना. आज ठीक है। मूड खराब है, नहीं। चलो थोड़े से ना सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, वो आपको और सैड बना देते हैं. ओके। तो राइट. आपको मूड खराब है ना, तो ढिंचैक गाने सुनिए, आराम से मूड ठीक हो जाएगा. ठीक है। पॉप टाइप सुनिए. हाँ, सीरियसली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. पहले क्या होता था, छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी, आज मूड खराब है, चलो सैड सॉन्ग सुनती यार, और रोना निकल गया, इधर रो रही इधर रो रही हूँ. फिर मेरे को दिमाग में एक दिन आया कि यार दिस इज नॉट राइट. मुझे तो, मैं अपना मूड रिलैक्स करने के लिए सॉन्ग सुन रही हूँ ना, क्यों ना अच्छे गाने सुने जाए. जब मेरा मूड हम्म। सैड है, तो मैंने अच्छे गाने सुनने स्टार्ट करे, कुछ ऋषि कपूर के पुराने मस्त वाले सॉन्ग जिसमें वो ऐसे ढिंचैक ढिंचैक करके डांस कर रहा है, कुछ भी न्यू सॉन्ग्स है ना. वो सुनने के बाद यू रियलाइज कि सैडनेस इज एक्चुअली नथिंग, इट्स जस्ट हम्म। मोमेंटरी. आप यस। इंस्टेंटली अपने आप को ना किसी भी वे आउट के थ्रू अपने आप को इजीली चार्ज अप कर सकते हो. क्योंकि हर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और सैडनेस भी आपकी कुछ टाइम के लिए होती है। यस, इट्स टेम्पररी. उसमें हम रेगुलर नहीं रह सकते। करेक्ट. हम्म। तो उसको राइट. लर्न करना पड़ता है। यस. यस। अब मूड खराब भी है ना, तो आपको तब भी आपको ढिंचैक सॉन्ग ही सुनने हैं. ओके। ठीक है ना, ताकि आपका मूड अच्छा रहे, क्योंकि हम क्यों सॉन्ग सुन रहे हैं मूड खराब में, ताकि हम रिलैक्स हो जाएं. राइट. ऐसे तो हम और स्ट्रेस में चले जाएंगे. राइट. सो नाउ, the next thing is take control of your own time.
आप अपना टाइम किसी के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर सकते, आपको टाइम अपना खुद के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, लोग अपने आप मैनेज हो जाएंगे आपके आसपास वाले। ओके। इन द स्टार्टिंग इन आई स्टार्टेड माय वर्क एंड ऑल, तो उस टाइम में जॉइंट फैमिली में थी, दो छोटे छोटे बच्चे, आई वाज लाइक 4 years old, और डॉटर तो मेरी 1.5 years थी। समझ नहीं आता था कैसे करूँ सब कुछ ना, कैसे मैनेज करूँ, खाना भी बनाना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, बहुत कुछ हो जाता था। एंड एवरीबडी वाज ऑन योर हेड, क्योंकि सबको आपकी हैबिट हो गई है, बिकॉज आई वॉज इजीली अवेलेबल अर्लियर। अब क्या हुआ, मैं अपना काम करने लगी हूँ, तो अब मैं इजीली अवेलेबल नहीं हूँ, तो वहाँ पे वो क्रिप हो जाता है, वहाँ पे लोग पैनिक करने लगते हैं आपके आसपास वाले। नाउ यू आर मैनेजिंग टाइम अकॉर्डिंगली, कि अच्छा ये मैंने खाना खिला दिया, अब खाना खिलाने के बाद जो मेरे पास अभी टाइम बचा, इसमें एवरीबडी स्लीपिंग, ये हम्म। मेरा टाइम है। हम्म। ब्रेकफास्ट करा दिया, 9:30 to 10 आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, एंड उसके बाद जब तक मेरा दोपहर के खाने का टाइम, दोपहर का टाइम स्टार्ट होता है, लंच का टाइम स्टार्ट, दिस इज माई टाइम, आई विल नॉट गिव दिस टाइम टू एनी वन, दिस इज माई ऑफिस टाइम। जस्ट अ सेक, हाँ, जस्ट अ सेक। ओके। हाँ, ठीक है ना। तो एवरीबडी नोज नाउ कि 10 o'clock शी विल सिट, और जहां वो अपनी चेयर पे सिट कर गई उसको उठाना मुश्किल है दोपहर तक। तो दे हैव एडजस्टेड अकॉर्डिंगली देन। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उसके बाद सब लोगों ने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। When I make them realize कि आपको ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम पे मिल रहा है, आपको लंच टाइम पे मिल रहा है, आपको डिनर टाइम पे मिल रहा है, आपको बेड से उठने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने मेड लगा दिया है। हम्म। तो अब क्रिप किस बात का और है, अब टेंशन किस बात की है। देन दे रियलाइज, हाँ हम इतना क्रिप कर क्यों रहे हैं। वो क्रिप इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरी शक्ल एवरी टाइम दिखाई दे रही थी, मैं थाली में बैठी हूँ, अब वो मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, हाँ। इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। Right. ऐसा कुछ नहीं, दैट वाज जस्ट साइकोलॉजिकल, कुछ नहीं हम्म। था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दैट वाज जस्ट साइकोलॉजिकल, और वो हमने क्रिएट किया था, हाँ। राइट। तो हमें अपने टाइम को उसी तरह मैनेज करना है जैसे हम चाहते हैं, आसपास के लोग अपने आप कर लेंगे, दे विल एडजस्ट विद अस, अगर उन्हें हमारे साथ रहना है तो दे विल एडजस्ट विद अस, और उनके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं मेरे अलावा। दे हैव एडजस्टेड, राइट, दे विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। But one question, अगर फिर भी कोई adjust ना करे then लीव इट, उसके उसके हाल पे छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया है, आई डोंट केयर। नहीं करेगा ना, मत करो, उसका काम ऐसे ही रहने दो, एज इट इज। but it will create You tension. get people, they are narcissist. You get But people. but it will create tension in like maybe home or maybe atmosphere. वो एवरीडे का काम है, वो नहीं होगा कोई और आके करेगा, वहां से ही भाग जाओगे, फिर कोई और आके करेगा। हम अपनी किस्मत अपने साथ लेके चलते हैं, राइट। किसी को अपनी जिंदगी से निकाल देने से या किसी से दूर हो जाने से हमारी किस्मत चेंज नहीं होती है, हम अपनी डेस्टिनी को अपने साथ लेके जाएंगे जहां भी जाएंगे, Right. राइट। जो प्रॉब्लम्स है वो होंगी होंगी, जिस दिन हाँ तुमने बिल्कुल। सोचना बंद कर दिया ना, उस दिन उन्होंने कहना बंद कर दिया, एंड दैट्स ट्रू। Agree. जिस दिन सामने वाले को ये समझ में आ गया ना कि ऐसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसे घंटा फर्क पड़ता है, इसे गाली भी दे लो नहीं फर्क पड़ रहा है इसे, तो क्या सोचिए, मैं ही पागल हूँ भैंस के आगे बीन में जा रहा हूँ। Hmm. दिस इज ट्रुथ। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में यही हो रहा है चेतना, मैक्सिमम लेडीज की लाइफ में यही हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट डिस कब तक, इस कब बात पे तक, डिस्कस हो जाते हैं, यस।
हाँ जी रविंद्र जी। मैम इस बात पे भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में है। सबकी हम्म, लाइफ में है, क्योंकि हम इतनी इजीली अवेलेबल हैं, सबको ये इतना साइकोलॉजिकल हो गया है कि शी शुड बी इजीली अवेलेबल। हम्म, मैंने बोला उठ तो उठ जाएगी, मैंने बोला बैठ तो बैठ जाएगी, क्यों? आज आपने हम्म, क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया, क्यों? बस उसी में दिक्कत आ गई है। हम्म। दिक्कत, बिल्कुल। तो मैम इसमें वो भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना अपने घर वालों का, कुछ हमको परसेंट। रखना ही पड़े। मैं वही तो कह रही हूँ, किस किस से भागोगे? हाँ, उसकी परसेंटेज घटा देंगे, वो धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश करेंगे धीरे एकदम, धीरे। यस। है ना। इट विल टेक टाइम, थोड़ा स्लोली स्लोली चलेंगे तो धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको अपने घर का इंसिडेंट बताती हूँ। आई वॉज इन जॉइंट फैमिली सम टाइम बैक। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चे, दोनों छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, सुबह उठो, खुद मतलब सबका खाना रेडी करो। मनीष को भी जाना होता था, आयन को भी जाना है, उसका भी खाना रेडी करो, मनीष का भी करो, ब्रेकफास्ट रेडी करो, उनका लंच रेडी करो, उनके कपड़े देखो, यूनिफॉर्म्स देखो। मनीष की भी यूनिफॉर्म्स हैं, तो यूनिफॉर्म्स देखो। देन मतलब सोचो, मैं सुबह 6 बजे उठ के आई वाज लाइक रनिंग लाइक एनीथिंग, हम्म, राइट? एंड सबको टाइम पे ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। मैं भाग के आयन को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल, वापस लेने भी जाती थी, तो पहले छोड़ने जा रही हूँ, देन कमिंग बैक सबका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरा एक बच्चा रोने लग रहा है क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है, राइट? और फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, नहाई धोई पूजा कर रही, अपना भी ब्रेकफास्ट देख रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना काम करने बैठ रही हूँ। तो वो जो 10 ओ क्लॉक्स मैंने अपना काम, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं तब की बता रही हूँ, अपना 10 ओ क्लॉक्स में काम करना स्टार्ट कर रही हूँ और 12-12:30 तक। उसके बाद मुझे अपना जल्दी जल्दी खाना बनाना आधा घंटे के अंदर और अपने बेटे को लेने जाना है। हम्म, हाँ। ठीक है? तो मैं सब कर रही हूँ। आपको लंच भी आपको टाइम पे मिल रहा है, मैं बेटे को भी लेके आ रही हूँ। उसका फिर एक मैंने उसको आफ्टर स्कूल में भी डाला था सो दैट ही कैन गो फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी कर रही हूँ। फिर उसको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। उनको डिनर भी टाइम पे मिल रहा है, जो वो चाह रहे हैं वैसा डिनर उनको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद भी मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी। हम्म। यू नो व्हाट, आज वो आपके अंदर एक कमी निकाल रहे हैं, आप उस कमी को पूरा कर दोगे, ठीक है, आपने वो कमी को रेक्टिफाई कर लिया, कल वो दूसरी कमी निकालने लगेंगे। हम्म, ड्रम या घंटा थोड़ी हो मंदिर का, बजते ही जाओगे। समवेयर यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, समवेयर यू हैव टू थिंक मैं ऐसी ही हूं, इससे एक्स्ट्रा मैं नहीं कर सकती। और मैं वहां बहुत पिस रही थी, एंड देन आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू बी अ परफेक्ट बहू, आई डोंट वांट टू बी अ परफेक्ट वाइफ, आई डोंट वांट टू बी अ परफेक्ट मदर। मैं ऐसी ही हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली। इफ यू कैन लिव विद मी, लिव। I'm giving you an option. If you want to live with me, live. Everybody is living with me. ठीक है। Everyone is living with me. यस। कि कोई मुझे छोड़ के नहीं गया। मैंने ऑप्शन दिया था, नहीं गया कोई छोड़ के। अपने आपके लिए चेंज तो लाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ता है। जिस दिन होता ये बहुत। समझ में आया कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ। हम्म, हम चाहे घर में कितना कलेश करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको उसी तरीके से अपने काम करने हैं, उसको सब कुछ करना है, हमें इसे नहीं फर्क पड़ रहा। उस दिन वो चेंज होने स्टार्ट हो गए। राइट, राइट, You will get narcissists in your life, and you have to accept yourself कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, जो मेरी एज है, मैं इसमें अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। आई एम लाइक दिस ओनली, दैट्स इट। ओके। आप राइट, भी मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको कुछ कुछ नहीं कह रही, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं अपनी पूरी कर रही हूँ, ठीक है? उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। ये मुझे एक्सेप्ट करना है, हम्म, कि हमें अपने लिए एक्सेप्ट करना है, हमें किसी और से एक्सेप्ट नहीं करना। किसी का सर्टिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या कोई हमारा सर्टिफिकेट ले रहा है? नो। नो, जब वो नहीं ले रहा, तो हम क्यों किसी के सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं? राइट, बिल्कुल सही।
कमियां तो फिर भी निकलेंगी, कुछ ना कुछ आप अच्छा हाँ, भी करेंगे। what is perfect in this world? Everything is 99%. Right. हम्म, राइट, ये तो है मैम, बिल्कुल हाँ, तो ऐसा ही। हमें खुद को एक्सेप्ट करना है कि हम यही हैं। लोग हमारे साथ अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो वो हमारे साथ रहेंगे। हम परफेक्ट नहीं बन सकते जैसे सामने वाला परफेक्ट नहीं है, एंड वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि जैसे आप परफेक्ट नहीं हो, वैसे मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग हो, वैसे मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ। और आपको कुछ भी चाहिए, कुछ कहना है, तो आप मुझे आके डायरेक्टली बोलोगे। आई एम नॉट गॉड। ये मीन्स Right. मुझे समझ जाना चाहिए, Right. मुझे समझना है। लेकिन जब मुझे उस बात का पता होगा तब, और वो मुझे भगवान आके नहीं बताएगा, ना मैं गॉड हूँ कि किसी के मन की इच्छा को जान लूंगी। मैं भी इंसान हूँ, मुझे एक इंसान आके बताएगा मेरी ये इच्छा है तो मैं समझूंगी। सिंपल। हाँ राइट, बिल्कुल यही तरीके से ही करना चाहिए है। धीरे धीरे चेंजेस लाने का तरीका ही ये है। यही है। मैं आपको ना एक टेक्निक बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड डियरमेंट टेक्निक। हमें कैसे अपनी बात को किसी के सामने रखना है। ओके, दिस इज कॉल्ड, मैं आपको बताती हूँ डियरमेंट टेक्निक। थोड़ा डियरमेंट टेक्निक ना डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी के अंदर समझाई जाती है, विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। एंड ओके, लिखो DEARMAN, डियर मैन। DEAR AR, डियर, DEARMAN, डियर मैन टेक्निक। किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रखनी है, ये टेक्निक तब यूज होती है। ठीक है, जब हम, ऐसा होता है ना कि सामने वाले ने कुछ कहा और हमें एकदम से ना उसके ऊपर चढ़ गए, Hmm. राइट, क्योंकि हम भी वो एक्सपेक्ट करेंगे और उसको समझ जाना चाहिए। पहले भी ऐसे हो चुका है, उसको अब तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ये सिचुएशन। और हम उसको ना क्या करते हैं, क्रिप करके ना कुछ मतलब बोल तो जाते हैं, सही ही बोल रहे हैं, लेकिन वो समझेगा नहीं उस बात को, क्योंकि हमने गलत तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन पास की है। डी का मतलब होता है डिस्क्राइब। डी का मतलब होता है डिस्क्राइब। किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करके बताना। कोई भी सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करना है। कल आपकी फ्रेंड आई, आप, उसने आपको बोला चल चल, ऐसा करते हैं मूवी चलते हैं। लेकिन आप जो है, आप उसको नो नहीं कह सकते, क्योंकि आपके अंदर नो कहने की हैबिट नहीं है, राइट। आप उसको नो नहीं कह पा रहे, तो अब आपको नो इसी तरह से कहना है। तो आप क्या करोगे, उसके साथ चले तो गए, बट नेक्स्ट डे आपने उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया होल सिचुएशन। देख मैं तेरे साथ ना वहाँ कल ना मुझे ये वाला काम था, लेकिन मैं तेरे साथ वहाँ मूवी चली गई ना, तो मेरे वाला काम रह गया, और इससे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, राइट। देन कम्स ई। ई मीन्स एक्सप्रेस। यू हैव टू एक्सप्रेस कि जब आपका वो काम रह गया तो आपको कैसा फील हुआ। Yeah, it has become so annoyed and disappointing. I was so demotivated. ये हो ही नहीं पाया। शायद मुझे मूवी नहीं जाना चाहिए था, या चल तेरे साथ में चली गई कोई बात नहीं है, बट मेरा ये वाला काम ना प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। आई एम वेरी डिस्ट्रेस टुडे। असर्ट करना है ओके। एक पॉजिटिव वे में, आपको उसको उस बात को रखना है। अच्छा, अगर मैं नहीं जाती तो ये मेरे पास सॉल्यूशंस होते करने की। Hmm. कोई बात नहीं, हम लोगों ने साथ में भी एंजॉय किया है, बट आई थिंक थोड़ा अगर मैं वो काम कर लेती तो आज इतना डिसअपॉइंट नहीं होती, मैं इतनी Hmm. डिमोटिवेट नहीं होती, इतनी डिस्ट्रेस नहीं होती, तो मैं तेरे साथ आज भी एंजॉय कर रही होती। Right.
Then comes reinforce. उसको ये नहीं कहना कि यार मैं अब तेरे साथ ना नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगी, तो मेरा तो बहुत दिन बर्बाद हो गया. यू हैव टू टेल इट इन द राइट वे. ठीक है. अब Hmm. नेक्स्ट टाइम ना ऐसा करेंगे, जब भी मूवी जाना होगा ना, वी विल डिसाइड आवरसेल्फ. Hmm. दोनों मिलजुल के डिसाइड करेंगे मेरे पास कौन सा टाइम अवेलेबल है. ठीक है. तो उसको फोर्स करना है हमें कि दोनों वी आर इक्वली इम्पोर्टेंट. वी बोथ आर इम्पोर्टेंट. तुम्हारी ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ हमें एंजॉय करना चाहिए, वी शुड गो फॉर मूवी, लेकिन अब टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, Right. ताकि मैं भी डिमोटिवेट ना हो, डिस्ट्रेस ना हो. ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. नाउ कम्स माइंडफुल. एम फॉर माइंडफुल. अब हम मैन पे स्टार्ट है, डियर इज खत्म, अब हम मैन पे स्टार्ट हो गया. Hmm. एम फॉर माइंडफुल. अच्छा चेतना, आपको पता है माइंडफुल क्या होता है? माइंड, ओके लेट मी टेल यू. माइंडफुल एक होता है माइंडफुल, MINDFULL. ओके. और एक होता है माइंडफुल, MINDFUL, सिंगल एल. तो आप मुझे बता सकते हो, आपको पता है ये माइंडफुल और माइंडफुल क्या होता है? Um, okay. First, I'm telling you MINDFUL. So I think just अपने माइंड को ट्रेन करना, किसी नेगेटिव थॉट्स ना आए, अपने माइंड को जस्ट इमोशनली कुछ बैलेंस करना, माइंडफुल थॉट्स आना. माइंडफुल थॉट्स में सिंगल एल आता है, दैट पॉजिटिव थिंकिंग without any distraction, emotional balance, and how to mind. If just you gave the example of the friend, सो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है अपने इमोशंस को, ताकि अपना टाइम भी खराब ना हो, सामने वाले को भी हर्ट ना हो. उसको हम किस तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करके, कि उसको भी इम्पैक्ट ना हो, यानी कि हमारी फ्रेंडशिप भी इम्पैक्ट ना हो, मेरा टाइम भी खराब ना हो. वो चीज एक एग्जाम्पल के तौर पे. बट अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शन एंड कंट्रोलिंग योर इमोशंस, लाइक नॉट कंट्रोलिंग बट मे बी एक्सप्रेसिव ऑफ इमोशंस एंड मैनेजिंग योर इमोशंस. So this is maybe mindful. ओके. एंड व्हाट इज माइंडफुल? LL. Mindful, I think it's a little bit like a full of mind with lot of thoughts, lot of things, lot of chaos sometimes, maybe sometimes positive, sometimes negative, like full of mind is full for everything, with everything. रविंद्र जी, is she right? नो. No? रविंद्र जी बताएंगी. जी please. मैम माइंडफुल, डबल एल वाला जो माइंडफुल है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कुछ काम कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पे ध्यान देना है. उसी काम को पूरे माइंड से, मतलब फुलनेस के साथ आपको उसका एक एक चीज का, एक एक स्टेप का एंजॉय करना है. डबल आप एल वाला. डबल एल वाला, यस. जैसे अगर हम कोई खाना खा रहे हैं, तो हम खाने की एक एक बाइट का मतलब पूरा टेस्ट ले रहे हैं, उसकी स्मेल फील कर रहे हैं, और साथ में हम मतलब कोई और काम नहीं करेंगे. लाइक जैसे हम लोग फोन देखने लग जाते हैं, कुछ और कर रहे हैं. Hmm. माइंडफुल डबल एल वाले में सिर्फ ये फर्क है कि आपको पूरी माइंडफुलनेस होनी चाहिए अपने एक ही पर्टिकुलर काम को ध्यान करने में. अगर और आपको सिंगल एल वाला? सिंगल लेवल वाला ये है कि आप जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं लेकिन साथ में फोन भी चला रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं, और आप मतलब दोनों काम कर रहे हैं, माइंड आपका दोनों तरफ डाइवर्ट है. माइंड फुलनेस में जो डबल एल वाला है, उसमें आपको एक ही मतलब पूरे एक ही काम में खो जाना है, ध्यान से करना है, अपना उसका पूरा फील लेना है. और जो सिंगल एल वाला है, उसमें आप एक ही काम, वो दो काम या तीन काम इकट्ठे करते हैं. माइंड तो आपका लगा हुआ है, लेकिन आप प्रॉपर नहीं, वो किस तीनों तरफ आपका डिवाइड है. ये फर्क है. ठीक है. फीडबैक टाइम. ओके चेतना, आई स्टार्ट विद यू. आपने काफी कुछ सही बताया, माइंडफुल भी एंड माइंडफुल भी. ठीक है. तो माइंडफुल मतलब व्हेन योर माइंड इज चैटरिंग, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी सब कुछ चल रहा है एक साथ. दैट इज माइंडफुल. Hmm. When you are occupied with so many things, Right. maybe you are doing so many activities at a time, or your mind is full of so many thoughts. Hmm. That is mindful.
Now comes the single L. When you said single L, we are focused. That's right. We are focused on one thing at a time. Suppose you are eating food, so you are taking the full taste of that food. दाल क्या अमेजिंग दाल बनी है क्या नमक है उसमें वाह सब्जी आलू कितने अच्छे से गल गया है when you are into that thought only that single thought कि अब आप खाना खा रहे हो तो you are thinking about खाना only Hmm. during puja तो you are thinking about God only Hmm. right. So that is mindfulness. And thank you so much. It was good. Nice attempt. रविंदर जी यू आर परफेक्टली करेक्ट लेकिन आपने दोनों को इंटरचेंज कर दिया Hmm. इंटरचेंज हो गया सॉरी हाँ गलती से जी। ठीक है ना बट यू आर कंप्लीटली करेक्ट सो आप चेतना को माइंडफुल कराना चाहोगे माइंडफुल सिंगल एल वाला हाँ जी माइंडफुल ओके आप ही कराइए मैम अभी ओके चेतना वी कैन डू माइंडफुल एक्सरसाइज फर्स्ट सो क्या चीज़ है आपके आसपास में कुछ भी बताइए क्या क्या है आपके पास में My phone, my water bottle, my clutcher. That's एंड it. Yeah, ओके my table chair, my bed. Okay, pick up your water bottle Okay. Yep. and उसको बहुत ध्यान से देखो Okay. अच्छे से देखो ऊपर नीचे खोल के देखो उसका कैप उतार के देखो अच्छे से Hmm. देखो व्हाट इज देयर ऑन इट कभी क्या नोटिस आप नया क्या नोटिस कर रहे हो उसमें रियली बताऊं तो बॉटल में मैं इसलिए नया नोटिस नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बॉटल को बहुत बार एनालिसिस कर चुकी हूँ खाली बैठ के दैट्स ग्रेट दैट इज सॉलिड राइट यप या सॉलिड कलर ओके सो बट वी फाइन कि अभी जब आप बॉटल के बारे में देख रहे थे बॉटल को देख रहे थे उसको छू रहे थे तो क्या आपके दिमाग में आ रहा था I really like this color. Actually, it's like very vibrant color. And second thing, I was thinking like maybe little bit of bachcho wala thinking, but I was thinking today I had to wash it. They were thinking completely about the bottle only, Right, right, right? right. That is called mindful. Hmm. तो जिस वक्त में हम जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं Hmm. राइट आज ना ऐसा करना जब आप अपने रूम में बैठो तो देखना बहुत दिन से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं देखी है कुछ तो ऐसा होगा जो नोटिस करने से रह गया होगा हो सकता है कोई Hmm. चीज़ ऐसी हो जो आपने बहुत दिन से देखी ही नहीं हो Hmm. है आपके रूम में बहुत टाइम से आपने सजाया है कुछ किया है लेकिन आपने बहुत दिन से देखा नहीं है Okay. ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन योर हाउस Hmm. ठीक है तो दिस इज Right. आवर एक्टिविटी फॉर टुडेज क्लास Right. so now okay I have a game for you it's a time management game the first person mentions a routine activity they did and the next two people okay Manish is not there Mawaji is not there actually exaggerate the impact of the activity or the scene for example a salesperson says I received a client email at 7 in the morning. The hype person can say, did you hear that? They don't need to get in touch with clients. Clients contact them. Got it? No, I think maybe I'll just. Okay. सेल्स पर्सन ने बोला ठीक है देर टू पर्सन सपोज सेल्स पर्सन ने बोला कि आज 7 बजे ही मॉर्निंग में मेरे पास क्लाइंट की ईमेल आ गया था Hmm. तो ये एक्टिविटी अब दूसरे पर्सन को जो आपके ग्रुप में दूसरा पर्सन है उसको एग्जैजरेट करनी है सी इनको तो क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती कॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्लाइंट्स खुद इनको आके ढूंढते हैं Okay. Okay. ओके रविंद्र जी आपको समझ आया आ, आपने ये बोला कि वो उनको ईमेल किया एक क्लाइंट ने या सेल्स पर्सन को कि आप हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए मैम हाँ ये एक्टिविटी कुछ इस तरह से है आप एक कोई अपनी रूटीन एक्टिविटी बताओगे ठीक है ओके ठीक है और जितना उसको एग्जैजरेट करेंगी अच्छा Okay. Okay. ओके चेतना तो Hmm. उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेल्स पर्सन ने बोला हम्म कि आज सुबह सुबह 7 बजे मेरे पास क्लाइंट का ईमेल आया है
तो उसी की टीम के दूसरे बंदे ने उसको एग्जैजरेट किया, उसकी सेंटेंस को एग्जैजरेट किया। सी इनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इनको तो क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दे डोंट हैव टू कॉल देयर क्लाइंट्स, क्लाइंट खुद इनको कांटेक्ट करते हैं। Hmm. इट इज जस्ट एन एग्जांपल। It's आप like समझ आए some मुझे? negative because he is saying something कि maybe he doesn't know the background कि सेल्स पर्सन ने यस जाके यस पहले बात यस करी तब क्लाइंट ने मेल करा, बट द सेकंड पर्सन इज लाइक हाँ इसको तो इजीली हो गया है, इसमें क्या है, ये तो यस खाली बैठे यस, बैठे आ जाता है। ओके। समझ आ गया ना? तो हम्म। हम लोग स्टार्ट करें रविंदर जी से। रविंदर जी, आप एक डेली रूटीन अपना एक बताएंगी, एक। और चेतना, विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू एग्जैजरेट। ओके, आई ट्राई। ओके रविंदर जी, कोई भी बताइए। क्या बताऊं? कोई अम, भी, कुछ भी। मैम कोई एग्जांपल नहीं आ रहा दिमाग में। कुछ कुछ तो आ रहा रूटीन। होगा, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया, या आज मेरा बेटा स्कूल, आज मेरे बेटे ने खाने में ये खाया, नाश्ते में ये खाया, या मेरी मदर हम्म। इन लॉ ने आज ये किया, कुछ भी, समथिंग। मेरा बेटा आज खेलने गया है। आज संडे है, तो आज वो खेलने गया है। एवरी संडे वो खेलने जाता है। चेतना। अब सो ओके, आई ट्राई। सो सही है यार, इनका तो खाली बैठे रहते हैं, कोई काम वाम नहीं है, बच्चे बच्चे भी बाहर घूमने वूमने चले जाते हैं और खूब टाइम मिलता होगा, इनकी लाइफ सही है यार। आई एम सॉरी। हाँ, ये बिल्कुल। आई एम वेरी सॉरी, आई जस्ट मेड इट लाइक No, no, it's okay. This is just a game, okay? We all understand that we are family. तो रविंदर जी, आपको गेम समझ आया? हाँ, यस यस। हाँ। कहने का तो चेतना, now you have to tell a daily routine activity. ओके। रविंदर जी, आपको एग्जैजरेट करना है। ठीक है। ठीक है। सो अभी मेरे को सेशन के बाद तुरंत खाना बनाना है, लंच वंच प्रिपेयर करना है और उसके बाद अपना मूवी देखना है। तो दैट्स मे बी सिनेरियो व्हिच इज लाइक माय रूटीन ऑफ सैटरडे संडे। ओके। आप जस्ट ऐसे कह ये इसको एग्जैजरेट करके ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है, इन मैम को कुछ काम तो बढ़िया है, इनका लाइफ अच्छी चल रही है, रूटीन बढ़िया है, खाना वाना बनाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और उसके बाद फ्री होकर मूवी देखते हैं और क्या। एटलीस्ट उनके पास मूवी देखने का टाइम था, हमें तो वो भी नहीं मिलता मूवी देखने का। जिस टाइम टीवी देखने बैठो उस टाइम बच्चे खींच लेते हैं हाथ से रिमोट, हमें नाश्ता देखना है, ये देखना है, वो देखना है। इनकी लाइफ एकदम सही है, अकेले हैं, इनकी आराम से रह रहे हैं, चिक चिक नहीं, किच किच नहीं। सिर्फ अपने लिए खाना बनाना है और आराम से मूवी देखनी है, दैट्स इट। और क्या। और दैट्स इट। दाल चढ़ा है, चावल चढ़ा है, खाना तैयार आज, और ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत क्या है? बड़ा घर, बड़ी बड़ी फैमिली होती है तो यार ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ, तो सबके मुंह बन जाते हैं, वो नहीं बनाओ तो। दैट आई एग्री एक्चुअली। वेरी डिफिकल्ट जॉब। भाई रविंदर जी, हमने तो दोनों ने पकड़ लिया इसको आज। बिल्कुल। चलिए जी, और बताइए, कुछ क्वेश्चन आपके पास में? चेतना, आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाउ वाज द सेशन, फीडबैक, एनीथिंग? Mm, as of now, yeah, everything is like I learned something new about the sometime maybe multitasking. So these are the things which I actually कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता है, बट स्टिल आई ट्राई टू मैनेज इन द बिकॉज जैसे बुक पढ़ने का है, नाइट में बुक पढ़ना है या टू डू लिस्ट करना है, वो मैंने स्टार्ट कर रखा है, करती हूँ ऑलरेडी। कि नाइट में एक बुक, कोई भी मुझे जो लगता है मोटिवेशनल बुक होती है वो पढ़ती हूँ, रात को कोई ना कोई नॉवल पढ़ के सोती हूँ। कभी कभी नॉवल नहीं पढ़ती हूँ तो सिंपल मुझे 90s के 80s के गाने बहुत पसंद हैं, तो मैं उन उन गानों को लगा के अपना थोड़ा सा सुन लेती हूँ। तो वो चीज यहाँ पे देखी मैंने कि उससे अच्छा लगता है। और ऊपर से मल्टीटास्किंग वाला जो सिचुएशन थी कि एक साथ हम लोग मोनोटास्किंग वगैरह के, वो सिचुएशन कभी कभी आती है, बट या आई ट्राई टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। सो वो चीज अच्छा लगा मुझे, तो कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू। रविंदर जी,
यस मैम, सेम मुझे भी ये जो मल्टीटास्किंग में से आपको टाइम डिवाइड करके कैसे करना है, ये चीज मुझे अच्छी लगी, नई सीखने को मिली। क्योंकि हम करते सभी हैं और वैसे भी टाइम डिवाइड करके ही करते हैं, लेकिन अब अपने माइंड को थोड़ा सा प्रोग्राम करके। ट्रेन करना है, राइट। यस। राइट। और रिवायर करना है, वायर थोड़ी ढीली हो गई है, इसको थोड़ा yes, सा पेचकस लगाना है। और ये जो गेम आपने बताया टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा लगा। डीएमएन टेक्निक बहुत ही बढ़िया है कि आपको कैसे पॉजिटिव वे में किसी को बताना है, कुछ बात करनी है, अपनी बात को डिस्क्राइब कैसे करना But Yes. one question, in this hype person like this one, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली हर किसी को हमारा बैकग्राउंड नहीं पता कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग। सो दोज थिंग्स सामने वाले को जो दिखेगा वो ऑब्वियसली अच्छा अच्छा दिखता है सामने से। जब Yeah, कोई grass ऐसी is हाइप, always greener on the other side. राइट, सो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है कि जो ये हाइप वाला पर्सन होता है ना, इसकी वजह से कभी कभी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि वी आर लाइक आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस में वो सेम अभी ऑफिस में कुछ हुआ था एंड आई एम जस्ट कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट, उसकी वजह से फिर मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है या रूटीन हम लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ दोज पर्सन जो नेगेटिव थॉट्स हम पे डाल देते हैं। तो वो कभी कभी मुझे मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे ये हाइप पर्सन का मेरे कभी कभी बहुत होता है क्योंकि ऑफिस में थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह बहुत रहता है, तो वो चीजों में किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे एकदम से मेरे को हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो चीजें थोड़ी सी मेरे को लगती है कि मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। आपको एंजाइटी होती है? कभी कभी इन चीजों की किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया है तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि यार इतना क्या बोल दिया मैंने, ऐसे किसी का क्या कर दिया कि इतना कुछ बोल दिया है। वो थोड़ा कभी कभी होता है मेरे को। हम्म। तो आई एम ट्राइंग टू वर्क, मतलब पहले से कंपैरेटिव टू इनिशियल स्टेज अभी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है मैंने। स्टिल वर्किंग ऑन इट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस राइट नाउ। सो वो थोड़ा देखो सा अभी लगता है मेरे आपकी को। फर्स्ट क्लास है, ठीक है, आज रविंदर जी थोड़ा लेट आई हैं, नहीं तो हम पीएमआर जरूर कराते, बिकॉज इट टेक्स लाइक शी इज न्यू, तो इट विल टेक लाइक 10 to 20 minutes, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पीएमआर करेंगे एंड यू विल गेट सॉल्यूशंस योरसेल्फ। हमारे हम्म, माइंड के पास ना हमारे सॉल्यूशंस खुद ही हैं। एंड यू नो पता है पहले लोगों की शादी क्यों कराई जाती थी? लोगों की शादी होती क्यों है? मुझे तो लगता है पता है? सोसाइटी की वजह से होती है। हमें ऐसा लगता है सोसाइटी की वजह से होती है, बट देयर इज अ साइकोलॉजी रीजन बिहाइंड दिस। क्यों होती है? आदमी क्या करता है, बाहर जाता है, चार लोगों से मिलता है, हम्म। राइट? तो उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई एक जगह होनी चाहिए। ही हम्म। कम्स होम, वापस घर ही क्यों आता है? कहीं और भी तो जा सकता है। वापस घर इसलिए आता है क्योंकि बाहर की जो टेंशन है वो बाहर छोड़ के आए। हम्म। घर में आते ही अपने माँ बाप को देखते ही, अपने बीवी बच्चों को देखते ही उसका वो टेंशन रिलीज हो जाए। तो you have to keep the office things outside only, हम्म। outside your main gate. अगर अंदर लेके आ रहे हो तो वही एनर्जी आप अंदर ले आए, तो आउटसाइड और इनसाइड में क्या फर्क रह गया? हम्म। राइट? देयर हम्म। शुड बी डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड। हम्म। तो वो जो टास्क है ना, ये तो आपके साथ डेली होगा, वो आदमी चला जाएगा कोई और आ जाएगा, फिर वो आदमी हम्म। चला जाएगा कोई और आ जाएगा। राइट। कल आपकी मम्मा ही बोल देगी ऐसा कुछ, कल हम्म। कोई रिश्तेदार ही बोल देगा ऐसा, किस किस को, किस किस की बातों को मन में लेके बैठोगे? हम्म। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। हम्म। एक ना टेक्निक बताती हूँ इसके लिए। अपने घर में बलून्स ला के रख लो। ओके। एक बलून फुलाओ, ठीक है, ब्लो द बलून। ओके। जिसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है ना, उसका नाम लो, उसके बारे में बात करो, उस बलून से उसका फेस बना दो, एंड उस हम्म। बलून को ना फट से फोड़ दो। जब आपकी ओह। बात पूरी हो जाए, तो वो जो आपका टेंशन, गुस्सा, स्ट्रेस है ना, वो इमिडिएटली रिलीज हो जाएगा। हम्म। अगर आपको किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसकी किसी बात के ऊपर गुस्सा आता है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन एवरीथिंग ऑन दैट गाय, गाली वाली गलाली को जो भी करना है उसका नाम लिखो 100 बार, फाड़ो, फ्लश इट ऑफ। हम्म। This is called NLP, Neuro Linguistic Programming, where you rewire your mind, हम्म। where you reprogram your mind like this.
Yeah, we ठीक है saw ना? in the Jab We Met also the burning of the photo of this, maybe Yes, that yes, kind of yes. thing. You are right. You are right. Hmm. And that is a psychology thing. Hmm. क्योंकि कभी कभी देखा है कि लोग बिना बात के भी कुछ भी करते हैं, they get satisfaction out of it. Huh, people are like poking, continuously poking Yes, something negative yes, they things. get satisfaction out of it. वो Hmm. अपना चिढ़ अपनी घुटन को निकाल रहे होते हैं तुम्हारे Hmm. ऊपर। तो सोचो वो कितना इफेक्टिव होता है। अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है तो आपको फाड़ने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है। Right. इमेजिन करो उस बंदे को ना बहुत दूर गया, आपसे बहुत दूर गए, स्काई में सन के पास वहां पे जाके ब्लास्ट हो गया। Hmm. यू विल फील गुड, यू विल फील सेटिस्फाइड, जैसे कि ना सब कुछ हो गया। अपने आप को सोचो कि आप एक ना उसमें हो, व्हाट इज ऑर्बिन में, ओके। Hmm. और जो बंदा आपको कुछ भी बोल रहा है, ट्रिप कर रहा है आपको लेकर, Hmm. राइट, वो लाइक दिस हाई पर्सन, ओके, सॉरी द अदर पर्सन, नॉट द हाई पर्सन, कुछ बोल रहा है और आपको धीरे धीरे ना उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। आपने उसको ना ऐसे करके म्यूट पे डाल दिया, Hmm. वॉल्यूम में जीरो, माइनस में चली गई वॉल्यूम, आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। Hmm. धीरे धीरे आसपास के लोगों की बातें भी सुनाई देनी बंद हो जाएगी। You will only perceive positive thoughts, positive thinking, Hmm. positive words. So these are some of the techniques जो आप खुद भी लगा सकते हो। Hmm. समझ में आए? तो Right. अपने पास कुछ बलून्स रख लो, Hmm. ब्लो वन बलून एवरी डे, जिस पे भी गुस्सा है उसकी शक्ल बनाओ, पट 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 पट, Hmm. एंड वो बोलो नेगेटिव, तूने मेरे साथ ऐसे किया, यू सेड ऑल दिस, फोड़ दो। You will Hmm. feel good. Definitely. I'll try that. I'll try that. पीस ऑफ पेपर पे उसका नाम लिखो 100 बार और उसको फाड़ के जस्ट फ्लश इट ऑफ और जला दो, कुछ भी करो, बिकॉज ये ना हमारे माइंड को नहीं पता क्या हो रहा है। हम Hmm. अपने माइंड को तो खुद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना। Hmm. माइंड डजंट नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। Hmm. माइंड डजंट नो व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव। Hmm. हमें पता है, सबकॉन्शियस में भर गया है। Right. ट्रेन कर लिया हमने अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी के लिए। Hmm. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें तो अपने आप को चिपके से निकालना है। Hmm. ठीक है, तो Right. हमारा माइंड, ये हमारे माइंड की, माइंड इज ऑलवेज अ साइकोलॉजी, Hmm. कि जो भी साइकोलॉजिकल है वो है। तो अगर आपने किसी का पेपर फाड़ दिया तो आपके माइंड को बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, बिकॉज आपने वही अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। Hmm. ओके, सो Okay. ट्राई ऑल दीज टेक्निक्स, दीज आर वेरी गुड 100%. टेक्निक्स। आपको गेट रिड ऑफ होना है इंस्टेंटली, यूज दीज टेक्निक्स। Okay. ओके रविंदर जी, आपको भी पता चली टेक्निक्स को, ट्राई दीज टेक्निक्स। Yes, ठीक है मैंने ना? तो वर्कशॉप ली है ये टेक्निक्स के लिए। हाँ जी, मैंने वर्कशॉप में ये टेक्निक सीखी है। सीखी है ना? Okay. ओके, चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। ओके, और आप लोगों के पास कोई टॉपिक हो तो मुझे आप बता देना, हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। लाइक मवा जी ने पहले एंजाइटी के बारे में बताया था, स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक ओके, है, आपके पास भी कुछ हो तो जस्ट कीप इट इन द ग्रुप एंड विल टॉक अबाउट इट। Okay. 100%. चलो, टेक केयर, बाय Okay. बाय, हैव अ नाइस डे Bye. एवरीवन, बाय। Nice session. Thank you. थैंक यू सो मच।